we will also see the remaining topic from the haloalkanes and haloarenes, that is elimination reaction. So we will complete this topic today. So what is elimination reaction? When haloalkanes react with alcoholic KOH, elimination reaction takes place. Okay, so what happen when haloalkanes react with alcoholic KOH, means solution of KOH made in alcohol. Okay, alcoholic KOH, then elimination reaction occur. Okay, so suppose we have this compound, the hydrogen is attached like this and halo group is here. Okay, so it is a haloalkane, right? Now when we react this compound with alcoholic KOH, then elimination of water will be there. Okay, so it will be minus H2O. Then what will happen? The carbon to which a functional group is attached, it is considered as the alpha carbon. Okay, which carbon? It will be the alpha carbon, and the carbon which is attached to the alpha carbon will be the beta carbon. Okay, so this will be our beta carbon. So the X or halo group will be removed from it is present. halo group तो वहीं से जाएगा जहाँ पर जिस कार्बन पर ये प्रेजेंट है. Okay, but our hydrogen will be removed from the beta carbon. लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से रिमूव होता है. तो हमारा जो नया कंपाउंड होगा वो होगा, सपोज हमने ऐसे लिखा X हमारा रिमूव हुआ तो यहाँ बचे हमारे पास 2 हाइड्रोजन और इधर हमने 2 हाइड्रोजन. ओके, सो द वैलेंसी इज lacking by 1, 1 2 3 1 2 3. So we will put a double bond here. Okay, and KX will be our byproduct. So this haloalkane is changes into a unsaturated hydrocarbon, that is alkene, right? So it is what? It is alkene. So it is a elimination reaction. So it is in case of the in case of what? When this is a symmetrical carbon compound. Okay, and what is in the case of asymmetrical carbon compound? We will see that. So we will see the in case of asymmetrical carbon compound, and it is according to the Sedgwick rule. Okay, so what this rule says, when we have the asymmetrical haloalkane CH2 CH CH, here we have a halo group and here carbon, hydrogen, hydrogen and hydrogen. Same we will do the reaction in the presence of alcoholic KOH. Okay, elimination will be there, right? Now what will be happen? Halo group, that is bromine, वो तो वहीं से eliminate होगा इस कार्बन से. Now we will see this carbon will be the alpha carbon and near to the alpha carbon will be the beta carbon. But now we will see 2 carbon are attached to the alpha carbon, so both carbon will be the beta carbon. तो ये अल्फा कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है तो ये बीटा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से ये वाला कार्बन भी अटैच है तो ये भी हमारा बीटा कार्बन हुआ. सो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स. ओके, तो 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे कि एक बार तो हमारा इस वाले बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे और एक बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके प्रोडक्ट बनाएंगे. बट व्हाट द सेडजेफ रूल सेज, इट सेज दैट हाइड्रोजन वहां से रिमूव होना चाहिए जहां पर लेस हाइड्रोजन हो. तो वैसे हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होना चाहिए? इस कार्बन से, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो माइनर होगा. तो हम प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं. दैट इज CH3 CH2 कार्बन ले लिया मैंने
एक हाइड्रोजन यहाँ से मुझे रिमूव कराना है, कार्बन H, और यहाँ से ब्रोमीन चला गया और ये हुआ मेरा CH, H और H। द वैलेंस इज लैकिंग बाई 1, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट बना इट इज मेजर बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू सेल्सियस रूल कि हमारा जो हाइड्रोजन है वहां से रिमूव हो जहां पर लेस हाइड्रोजन हो, और प्लस हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट इस वाले बीटा कार्बन से बनेगा दैट विल बी व्हाट, हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 कार्बन, इसको मैं हाइड्रोजन एज इट इज रखूंगी, और कार्बन यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन, बीटा हैज बीन, वो ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, और यहाँ पर H और यहाँ पर H। नाउ द वैलेंसी इज लैकिंग बाय 1, तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है, और ये वाला कैसा होगा, मेजर होगा। क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से ही एलिमिनेट होगा, तो इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज also called beta elimination reaction, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिया आज कि हेलो एल्केन्स में कैसे होगी, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराना है, वाटर को रिमूव करना है। तो जब सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीटा कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। असिमेट्रिकल के केस में 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बट हमारा सही प्रोडक्ट वही होगा जो अकॉर्डिंग टू सेल्सियस रूल होगा, यानी जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन को उसी बीटा कार्बन से एलिमिनेट करें। एंड बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूविंग फ्रॉम द बीटा कार्बन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द beta elimination reaction. I hope this concept is clear now. Okay, thank you so much.